नमस्कार, आप सभी का मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ में हिस्सा लिया। तो देखिए, मनसुख मंडाविया प्रयागराज पहुंचे हैं और जहां महाकुंभ में मांडविया ने हिस्सा लिया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मनसुख मंडाविया नाव पर बैठे हुए हैं और उनके साथ उनका परिवार जो है वो भी मौजूद है। लगातार देखिए, महाकुंभ में जिस तरीके से हमने देखा कि जो राजनेता है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं, और अब केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी पहुंचे हैं प्रयागराज और यहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने परिवार के साथ मनसुख मंडाविया प्रयागराज पहुंचे हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो वहीं नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। बताते चले कि देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। उम्मीद की जा रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बाद सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। तो देखिए, चुनाव आयुक्त को लेकर यहां पर बैठक हुई है, जहां पर अब यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। खत्म होने के बाद यहां पर पीएम मोदी ने बैठक ली है और जिसके बाद नए चुनाव आयुक्त की यहां पर बैठक में चर्चा की गई। ओमान के मस्कट में 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित करते हुए हिंद महासागर को वैश्विक जीवन रेखा बताया। उन्होंने कहा कि इसका उत्पादन, उपभोग, योगदान और कनेक्टिविटी आज दुनिया को चलाने के तरीके का केंद्र है। Excellencies, distinguished delegates, dear friends, it's a great pleasure today to join you all and share my thoughts at the 8th Indian Ocean Conference on our voyage to new horizons of maritime partnership. Before I do so, let me express my gratitude, appreciation to the government of the Sultanate of Oman, specifically to my brother, Foreign Minister Syed Badr, to the organizers, India Foundation, RSIS, and of course to Ram Madhav ji, who's been the force behind the conference for so many years. Friends, we meet at a time when there is considerable churn in world affairs. At such a juncture, an open and constructive exchange of views is of particular benefit. I'm confident that all of us will find great value in the discussions that we will be holding over the next 2 days. Changes in the global order may be expressed through new ideas and concepts, but they're also reflected in the evolving landscape. The Indian Ocean region is no exception to that rule. And this matters not just to us as inhabitants of this community, but given our salience in so many dimensions, to other regions and nations as well. After all, as we heard from previous speakers, the Indian Ocean is veritably a global lifeline. Its production, consumption, contribution, and connectivity is central to the manner in which the world runs today. Now, at the two ends of the ocean, this churn
is at its sharpest today. In the Middle East or West Asia, there is a serious conflict underway with the potential for further escalation and complication. At the same time, long-standing issues are being revisited, sometimes with a radically different approach. Its maritime consequence is visible in a serious disruption of global shipping with considerable cost to all our countries. There are questions which arise from our ability and willingness to respond, as indeed from partnerships that are relevant to that task. At the other end, the Indo-Pacific has been witnessing deeper tensions and sharper contestations. The scenario is intrinsically maritime in nature, involving respect for and observance of international law. There are other concerns, some related, some autonomous. Stronger assertions of interest is one issue, concerns about unilateral changes to the status quo another. From India's own experience, we can say that adhering to agreements and understandings is a central element to ensuring stability and predictability. The region in between is where most of us come from, being littoral states or island nations of the Indian Ocean. Each country has its individual challenge, but nevertheless, there are some general trends that are worth noting. Many are developmental in character, but do, in some form or the other, impinge on maritime behavior. Like other parts of the global south, the Indian Ocean nations too face resource constraints and economic headwinds. Many of them are struggling to meet their SDG targets. In quite a few cases, debt is a serious concern. Again, some of that arises from stresses of the international economy, but in certain cases from imprudent borrowing and unviable projects. Another common issue is that of rebuilding connectivity in the region after decades of colonial-era disruptions. To make this a truly shared endeavor, it is vital to ensure that connectivity initiatives are consultative and transparent, not unilateral and opaque. Yet another widespread concern is the challenge faced by Indian Ocean states to monitor their EEZ and secure their fishing interests. Nor can they be impervious to illegal trafficking of various kinds and, of course, the specter of terrorism. Each of these dimensions, and certainly the cumulative impact, has a strong maritime implication. Our journey to new horizons must necessarily focus on addressing these challenges. So, how is India contributing to these endeavors? Obviously, by rapidly strengthening its own capabilities and forging partnerships with Indian Ocean neighbors, near and far, but also by shouldering responsibilities, stepping up in times of trouble, and providing leadership where required. Let me underline this today by providing 10 relevant examples. 1. Stabilizing economies and societies under stress would surely rank among the most important. As the impact of the COVID pandemic and conflict unfolded, India was the source of vaccines, of medicines, of food, fuel, and fertilizer for many others. The biggest commitment it made, of course, was to Sri Lanka, a financial package of about $4 billion to stabilize its economy that had slid into crisis.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की है। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2025 से 26 की शुरुआत होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की है। और देखिए, ये बैठक जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई है। दरअसल 18 फरवरी से यूपी में बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के मुख्य द्वार और भित्ति चित्र का अनावरण किया है। इस दौरान कई अधिकारी और नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो लखनऊ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां विधान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहां मुख्यमंत्री ने भित्ति चित्र का अनावरण कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जहां पर उन्होंने अनावरण किया है। लखनऊ समेत प्रदेश के 13 बड़े और मध्यम स्तर के शहरों के विकास का खाका तैयार किया जा रहा है। बुके ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से शुरू होने वाली विकास परियोजनाओं के जरिए इसका विकास होगा और आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बड़े होने के साथ ही धार्मिक महत्व वाले शहरों का खाका जो है वो तैयार किया गया है। पहले चरण में ऐसे 13 शहरों में 3 चरणों में विकास कार्य जो है वो कराए जाएंगे। इन शहरों के विकास के लिए अल्पकालिक और मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी। लखनऊ में युवा उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों से संवाद किया और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अयोध्या के लिए इस दौरान जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ उसका अंदाजा आप देख सकते हैं कि उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए, जैसे राम जन्मभूमि न्यास के लिए पब्लिक ने जो कंट्रीब्यूशन किया, श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए, जो कुछ भी वहां पर वर्तमान में हो रहा है, सभी श्रद्धालु जनों के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का ही परिणाम है। ऐसे ही काशी में, काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी और आज उनकी संख्या बढ़ करके काफी ज्यादा हो चुकी है। मैं परसों काशी में था और मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं, जब भी मैं काशी वासियों से वहां बात कर रहा था, उन सब ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा, साहब हमने अपने जीवन में कभी भी इतनी भीड़ काशी में कभी नहीं देखी जो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं। और पूरा देश आ रहा है। प्रयागराज में 2013 में भी कुंभ था। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। आयोजन 55 दिन का था। 2019 को अर्ध कुंभ था, उसे हमने कुंभ के रूप में, प्रयागराज कुंभ के रूप में आयोजित किया था। उस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालु जन और पर्यटक आए थे लगभग 24 करोड़। और इस बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में
36 दिन हो चुके हैं। यानी इन 35 दिनों के अंदर 700 से अधिक तो यानी रूटीन की फ्लाइट वहां 40 हैं प्रयागराज के लिए, वो चली रही हैं। 700 से अधिक नए वहां पर इस दौरान चार्टर्ड उतरे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मेला स्पेशल के रूप में रेलवे को ट्रेन चलानी पड़ रही है। 14,000 परिवहन निगम की बसेज का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये भी चल रही है। 28, 29 और 30 में मात्र इन 3 दिनों में प्रयागराज में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी वहां लगाई। 5 करोड़ से अधिक, लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 28 जनवरी को। 8 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे 29 जनवरी को और 2.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 30 जनवरी को। सरकार ने अपने स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम भी किए थे। बुनियादी सुविधाएं उनको अच्छी मिले, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, मेले का विस्तार हो, संगम में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो। इन सब पर पहले से एक्सरसाइज चल रही थी, लगातार एक्सरसाइज चल रही थी और अंततः वहां पर हम लोगों को इस सफलता प्राप्त हुई कि सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और आज वहां पर, आज भी प्रातःकाल में जब 8 बजे रिपोर्ट ले रहा था तो तब तक 40 लाख श्रद्धालु केवल आज स्नान कर चुके थे और ये दिन भर एक क्रम चलता रहेगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पार्किंग प्लेस सब भरे हुए हैं। मेला क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, स्नान चल रहा है। ये क्रम, ये केवल एक आस्था को सम्मान देने का ही अभियान नहीं है। आस्था को सम्मान मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आस्था का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, एक सज्जन ने दिया कि हम लोग प्रयागराज में कुछ निवेश करना चाहते हैं। पूछा गया कैसा निवेश चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आस्था के अनुरूप होगा। आस्था के अनुरूप कौन सा निवेश हो सकता है? उन्होंने कहा मैं 12 ज्योतिर्लिंग का रिप्लिका बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिखाया कि हम इस रूप में करना चाहेंगे। तो उनसे कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक काम करिए कि जितना भी रॉ मटेरियल है, पुराना लोहा होगा, पुराना स्टील होगा, पुराना फाइबर होगा, पुराने टायर होंगे, इनका इस्तेमाल करते हुए रिप्लिका तैयार कराओ। उन्होंने लैंड की मांग की। उन्होंने कहा आप हमें लैंड दे दीजिए, पैसा मैं लगाऊंगा और प्रॉफिट 50-50% हो जाएगा। तो नगर निगम का आदेश हुआ, नगर निगम ने उनको लैंड, 11 एकड़ लैंड उपलब्ध करवाई। पार्टी ने पैसा लगाया। जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसका उद्घाटन भी किया। 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में वह संस्था 14 करोड़ लगाई थी। 14 करोड़ तो अपना कमा चुकी है, 14 करोड़ की प्रॉफिट कमा करके उसने नगर निगम को भी दिया है। आप तो सभी उद्यमी हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ
उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। हमने आस्था को केवल ये मान लिया कि इस पे कोई ताकत नहीं है, उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। हम भारतीयों के मन में गुलामी के कालखंड में जो ये बात डाल दी गई कि जो भारतीय है वह कमतर करके उसको आंको, उसको महत्वहीन कर दो, उसकी कोई महत्व नहीं है, ये जो बात समझाई गई उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमें ये बताया गया कि जो भारत का है इसका महत्व नहीं है और जो भारत के बाहर का है उसका महत्व है, तो दुष्परिणाम भी हमारे सामने थे। मोदी जी ने पहली बार इस बात का एहसास कराया भारतवासियों को, नहीं, हमें एक भारतीय के रूप में भारत से जुड़े हुए जीवन मूल्यों को, भारत की आस्था को, भारत के प्रोडक्ट को हम महत्व देकर के स्वयं की महत्ता को बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपनी स्वयं की पूर्वजों की विरासत पर अगर हम गौरव की अनुभूति करेंगे तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। और आज प्रयागराज वही कर रहा है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। कितना बृहद आयोजन बनकर के पूरा आयोजन आज देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और ये जो एक पक्ष है इसका, इस पक्ष को हमने माना होता तो विदेशी सामानों से जो कभी भारत की मार्केट और बाजार भरे पड़े होते थे, ये नहीं होते। याद करना, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना लागू की, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही और मेरे साथ आपको बताते चले कि अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।